اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت لقي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له بسم الله يا بتي من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء ونغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأن القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أم إني أشملك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت من نجدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. أتأذنني أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشملك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة يشفنك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ولدك تحت الكساء. فأقبل الإسلام من الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك من اختار الله. أتأذن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي وقد أذنت لك. فدخل علي الإسلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها والكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بثرتي ويقولتني يا فاطمة لقد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في موضع هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى لبيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فقال جبريل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول له عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية
ولا زمهرية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أزلت كل ما كنت أتأذى الكساء فهل تأذن أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فليم. وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فليم. فقال عليه السلام يا رسول الله يقبلني من جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي منشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فضله. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فضله. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشيتنا وميبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله ولا تعلم حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فقال عليه السلام إذا لا يفوزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب حق احمد مختار مصطفى یا رب حق حیدر کرار مرتضی یا رب حق سید معصومہ فاطمہ یا رب حق سید مسموم مشتبہ یا رب حق سبت نبی شاہ مشرقین تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین جس بزم میں نجم پڑھی جائے اے خدا ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو دعا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب میرے لاش کی رہے گی تمہیں پہچان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گرے بان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گرے بان بہن
کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ کے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے اسی پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، صلوات محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا ونبینا وشفیعنا المذنبین ورحمۃ للعالمین وابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا،
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے۔ تعریف اس خداوند عالم کی کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد امامت کا سلسلہ باقی رکھا اور قرآن جیسی عظیم کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز رسول اللہ کی ایک حدیث سے کیا ہے، جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بنا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ عزیزان محترم، ہمارے زمانے کے امام 12ویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، امام سے قریب ہوتے چلے جائیں تاکہ زمانے کے امام کو پہچان کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ ورنہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور مر گئے تو وہ جہالت کی موت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو کہ صرف جب ماہ شعبان آئے اور امام علیہ السلام کی ولادت کا روز آئے اسی کے وقت ہم زمانے کے امام کا کچھ تذکرہ کر لے، امام کو یاد کر لے، امام کو کچھ جان لے۔ نہیں عزیزان محترم، کوشش کی کرے کہ ہم پورا سال جہاں سے ہمارے لیے ممکن ہو ہم زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، امام کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اور اسی لیے جمعہ کا دن امام زمانہ سے منسوب ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور امام کے لیے آج کا دن مخصوص رکھا گیا ہے، تو ہم بہت زیادہ کوشش کریں آج کے دن بھی امام علیہ السلام سے قریب ہونے کی، امام علیہ السلام سے نزدیک ہونے کی، امام علیہ السلام کو راضی کرنے کی۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے ویک کے ہر ڈیز میں دعا احد کے ذریعے، زیارت آل یاسین کے ذریعے ہم امام علیہ السلام سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ آج کچھ ایسی باتیں جو علماء کرام نے ہم تک پہنچائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم امام زمانہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس ہے جو ہمارے علماء نے ہمیں بتائے ہیں کہ اگر آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ان باتوں پر عمل کریں گے تو زمانے کے امام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگ جب بھی مجلسوں میں محفلوں میں سنتے ہیں کہ امام سے قریب ہوتے چلے جائے، امام کی معرفت حاصل کرتے چلے جائے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم امام سے نزدیکی بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کیا کریں اپنی زندگیوں میں کہ جس کی وجہ سے ہم زمانے کے امام سے قریب ہو جائے۔ تو آج جتنے بھی سامعین ہیں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اس وقت جو مجھے سن رہا ہے، اس کے بعد جو مجھے سنے گا، ان سب کے لیے کچھ نایاب تحفے کہ جس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنا کر اپنے زمانے سے کے امام سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ امام زمانہ سے اگر قریب ہونا ہے تو روزانہ امام کو سلام کرنے کی عادت ہم ڈال دیں۔ ایوری ڈے، روزانہ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے، صبح جیسے ہی ہم آنکھ کھولے فوراً ہم اپنے زمانے کے امام کو سلام کریں۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا یہ روٹین بنا لے گا تو
तो ज़माने के इमाम से करीब होता चला जाएगा। इसके लिए उलमा ये दलील भी पेश करते हैं कि सलाम करना मुस्तहब है, जवाब सलाम वाजिब है, चाहे हमारे गुनहगार कान सुन सके या न सुन सके। इमाम ज़माना को जब हमारी जानिब से सलाम होगा तो इमाम जरूर हमारे सलाम का जवाब देंगे, और जब इमाम ज़माना हमारे सलाम का जवाब देंगे तो सलाम का जवाब देते वक्त इमाम हमारी जानिब मुतवज्जे होंगे, इमाम का करीम चेहरा हमारी तरफ फिरेगा, और इमाम की एक नजर रहमत अगर हम पर हो जाए ना, मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। कोशिश करें हम और आप कि डे टू डे लाइफ में ये रूटीन बना ले। अब से इंशाल्लाह जब भी हमारी सुबह के वक्त आंख खुलेगी, सबसे पहले हम अपने जमाने के इमाम को सलाम करेंगे। आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त उठने के साथ इमाम को सलाम करे, पहले अदब से खड़ा हो, इमाम को सलाम करे और फिर इमाम अलैहिस्सलाम से मदद मांगे, कहे कि आका मौला इमाम ज़माना, पूरा दिन मैंने आपकी सुपुर्द कर दिया है। आयतुल्लाह बहजत कहते जब भी आंख खुले अदब से खड़े हो जाए और फिर ज़माने के इमाम को सलाम करने के बाद इमाम से बातें करे इस तरह से कि आका मौला इमाम ज़माना, आज का दिन मैं आपके सुपुर्द कर रही हूँ, मौला आप मेरी मदद कीजिएगा, और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद आगा बहजत कहते हैं जब रात का वक्त हो तो रात को अपने बिस्तर पर सोते वक्त अपने सीने पर हाथ रखकर फिर इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम करके सो जाए। आगा बहजत कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया अपनी जिंदगी में, याद रखो, जान लो कि तुम्हारी जिंदगी में शैतान की फिर कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। कितना बेहतरीन रास्ता है ना शैतान को अपनी जिंदगियों से भगाने का, जमाने के इमाम से करीब होने का कितना आसान रास्ता आयतुल्लाह बहजत बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगियों में ये अमल जरूर करेंगे ताकि हम जमाने के इमाम से करीब हो जाए। दूसरा रास्ता जिसको उलमा बताते हैं जमाने के इमाम से करीब होने के लिए, वो है जिक्र जमाने के इमाम, जिक्र इमाम जमाना अज्जलल्लाहु तआला फरजो शरीफ। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में हर वक्त इमाम जमाना का जिक्र करते रहे, उठते बैठते खाते पीते नेमत मिले तो इमाम को याद करे, कोई अच्छी चीज घर में आए तो इमाम को याद करे, कोई खुशी का मौका आए तो इमाम को याद करे। हर वक्त जमाने के इमाम, हमारे जमाने के इमाम की याद, जमाने के इमाम का जिक्र हमारे साथ होना चाहिए, भुला ना दे। ये नहीं कि बस जुमा का दिन आया हमने दुआ नुतबा पढ़ ली, इमाम को याद कर लिया, 15 शाबान आई हमने इमाम का जिक्र कर लिया, नहीं। उलमा कहते हैं रोजाना एवरी डे इमाम ज़माना को उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। आयतुल्लाह शेख इब्राहिम साहिबुज़्ज़मानी तबरेज़ी ये इतना जमाने को इमाम को याद करते थे, खाना खाते थे तो इमाम, पानी पीते थे तो इमाम, उठते थे तो इमाम, बैठते थे तो इमाम, किसी के साथ बातें करते थे तो अपनी बातों में भी इमाम का तस्करा होता था। इसीलिए लोगों ने उनका नाम ही रख दिया साहिबुज़्ज़मानी, आयतुल्लाह शेख इब्राहिम साहिबुज़्ज़मानी, ये उनका नाम हो गया। तो हमें भी कोशिश करना है अपनी लाइफ में, खाना खाए तो हम कहे कि बस मौला ये आपका सदका खा रहे हैं, ठंडा पानी पिए मौला ये आपके सदके में हम ठंडा पानी पी रहे, नेमत मिले
मौला ये आपके सदके में नेमत मिली है, बच्चों की तरक्की हो, मौला ये आपका सदका है, हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, बच्चे खुशहाल है, बच्चे फरमाबरदारी के साथ हमसे पेश आ रहे हैं, नेक औलाद है, मौला आपकी नजर करम है हम पर, इसीलिए हमारी जिंदगी आबाद है, नेमत मिलती चली जाए, खुशियां आती चली जाए, इमाम जमाना को हम याद करते चले जाए, घर में कई गैदरिंग हो, कई दोस्तों से मुलाकात हो, रिश्तेदारों से मुलाकात हो, हम अपनी गैदरिंग्स में अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हर वक्त जमाने के इमाम का जिक्र किया करें। ये इंसान को जमाने के इमाम से करीब कर देगा। और इमाम जमाना से करीब होने के लिए बेहतरीन रास्ता है कि इमाम का जिक्र किया जाए, और लोग अपने जमाने के इमाम को हर पल हर वक्त याद रखने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लिया करते हैं। कुछ लोग अपनी अंगूठी पर लिखवा लेते अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज, ताकि जब भी अंगूठी पर नजर आए जमाने के इमाम याद आए। अपने बच्चों के नाम इमाम के नाम से रखते, जब भी बच्चों को पुकारे जमाने के इमाम याद आ जाए। अपने फॉर्म्स के नाम इमाम के नाम से रखते ताकि जमाने के इमाम याद आ जाए। एक शख्स ने अपने जमाने के इमाम को हर वक्त याद रखने के लिए अपने ड्राइंग रूम में, अपने हॉल में एक फोटो फ्रेम लगा ली, जिसके अंदर कोई फोटो नहीं था। एक मर्तबा एक शख्स आए, उनके घर पे देखा कि हॉल में ड्राइंग रूम में एक फोटो फ्रेम है, लेकिन उसके अंदर कोई फोटो नहीं है, फोटो फ्रेम खाली है। एक मर्तबा पूछा कि ये फोटो फ्रेम खाली क्यों है, किसी का फोटो होना चाहिए। कहा कि मैंने इस फोटो फ्रेम को इसलिए खाली रखा है क्योंकि मैं इस फोटो फ्रेम के अंदर अपने जमाने के इमाम की तस्वीर लगाना चाहता हूं। बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो दिन कब आएगा कि मेरे जमाने के इमाम आएंगे, उनकी तस्वीर में इस फोटो फ्रेम में लगाऊं। मैं जब भी इस जगह से गुजरता हूं, यहां से जब पास होता हूं, इस खाली फोटो फ्रेम को देखकर मुझे अपने जमाने के इमाम याद आ जाते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। तो हम अपनी तरह से जमाने के इमाम को हर पल याद रखने के लिए नए नए रास्ते अपना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम अपने जमाने के इमाम को हर पल हर वक्त याद रखें। तो ये दूसरा पॉइंट कि जिसकी वजह से इंसान जमाने के इमाम से करीब हो जाएगा। तीसरी चीज जो उलमा बताते हैं, उलमा कहते हैं रोजाना इमाम जमाना की कोई भी एक ज़ियारत को पढ़ लिया करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ज़ियारतें हैं, ज़ियारत आले यासीन है, जुमा के दिन की, आज के दिन की खास मखसूस अलग ज़ियारत है। तो हम एवरी डे जमाने के इमाम की किसी भी एक ज़ियारत को पढ़ लिया करें। आयतुल्लाह मर्शी नजफी तो ज़ियारत आले यासीन के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करते थे, अपने बेटे से भी कहते थे कि ज़ियारत आले यासीन पढ़ा करो। ये वो ज़ियारत है जो इमाम को खुद को पसंद है। तो ये बेहतरीन रास्ता, कुछ वक्त हम इमाम के लिए निकाले, अपने 24 घंटों में से एक ज़ियारत इमाम के लिए हम पढ़े। तो ये बेहतरीन रास्ता है इमाम से नजदीक होने का। और जितने भी रास्ते मैं आपको बता रही हूं जमाने के इमाम से नजदीक होने के, सारे के सारे रास्ते बड़े आसान हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूं जिसको करने के लिए हमें रातों की रात जागना पड़े, जिसको करने के लिए हमें दिन में मशक्कत और बड़ी बड़ी मेहनतें करना पड़े। नहीं, ये छोटी छोटी इबादत और छोटी छोटी कोशिश है कि जिसको इंशाल्लाह हम डे टू डे लाइफ में अंजाम देंगे, फिर आप खुद कहेंगे इसे करने के बाद कि यकीनन ये छोटी छोटी चीजें मुझे किस कदर काम आई, इन छोटी छोटी चीजों ने मुझे किस कदर अपने जमाने के इमाम से करीब कर दिया। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखे। चौथी चीज, उलमा कहते बहुत ज्यादा दुआए फरज पड़ी जाए अपनी जिंदगियों में। दुआए फरज, अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्न हसन, इस दुआ को भी दुआए फरज कहा गया है। और इलाही अज़मल बला, इस दुआ को भी दुआए फरज कहा गया है।
अपनी डे टू डे लाइफ में दुआ फरज को हम बहुत ज्यादा पढ़ते रहे। आयतुल्लाह अली आका काजी, ये हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे शीर के, आयतुल्लाह अली आका काजी कहते हैं कि अगर जमाने के इमाम से इर्तिबाद चाहते हो, नजदीकी चाहते हो, तो नमाज वित्र के कुनूत में दुआ फरज पढ़ा करो। हर दुआ से पहले दुआ फरज, आप दुआ के लिए हाथ उठाए, नमाज के बाद दुआ फरज, कुनूत में दुआ फरज, कोई और दुआ पढ़ने जा रहे दुआ फरज, हर चीज में दुआ फरज हम पढ़े। ये दुआ फरज हमारे दुआओं की कबूलियत में जो रुकावटें है, हमारी आम दुआएं अपनी जिंदगियों की, उन रुकावटों को दूर करेगी इंशाअल्लाह। और जमाने के इमाम से हमारा इर्तिबात बढ़ाएगी दुआ फरज, जमाने के इमाम से हमारी नजदीकी बढ़ाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये बहुत आसान चीजें हैं जो हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट कि जिसकी वजह से हम जमाने के इमाम से करीब हो सकते हैं, वो ये है कि अपने हर आमाल, अपने हर इबादत को जमाने के इमाम को हदिया करते चले जाए। आयतुल्लाह सादिक रूहानी कहते हैं कि अगर तुमने ये आदत डाल दी कि अपनी हर इबादत को जमाने के इमाम को हदिया करते चले जा रहे हो, अपने हर नेक काम को जमाने के इमाम को हदिया करते चले जा रहे हो, तो तुम महसूस करोगे कि बहुत जल्द तुम इमाम जमाना से करीब हो गए। मुस्तहब नमाजे, रोजा, सदका, किसी मोमिन को दिल को खुश किया, कोई खैरात कर दी, कोई भी हमने अच्छा काम कर लिया, फौरन हम इमाम की तरफ मुतवज्जह हो जाए, जमाने के इमाम को हदिया कर दे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, उलमा कहते हैं इस तरह से अपनी जिंदगियों में हर नेक अमल के बाद, हर नेकी के बाद इमाम को याद करने से इमाम से नजदीकियां बढ़ती चली जाएगी। और अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत अलैहिस्सलाम को जब हम अपनी किसी भी इबादत का हदिया करते हैं, उसका अज्र बढ़ जाता है, उसका हमें इतना सारा रिवॉर्ड खुदावंद आलम अता करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और आने के बाद कहता है, मौला मैं कुरान खत्म करके मासूमीन अलैहिस्सलाम को हदिया करता हूँ, यानी मौला मैं जब एक कुरान खत्म करता हूँ तो रसूलुल्लाह को हदिया करता हूँ, दूसरा कुरान खत्म होता है तो मौला कायनात, तीसरा करता हूँ तो शहजादी फातिमा ज़हरा को। इस तरह से मैं एक एक कुरान खत्म करता चला जाता हूँ और मैं उसे अहले बैत अलैहिस्सलाम 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को हदिया करता चला जाता हूँ। तब इमाम से वो सवाल करता है, मौला मुझे इसका क्या अज्र मिलेगा? इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़यामत के दिन तुम इन हस्तियों के साथ रहोगे। वो शख्स हैरान रह गया, मौला इतना बड़ा रिवॉर्ड, इतना बड़ा अज्र। तब रिवायत कहती है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कहा, हाँ 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 तुम उनके साथ जन्नत में रहोगे। ये अज्र है अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपनी इबादतों का अज्र, अपनी इबादतों का सवाब हदिया करने का। तो हम कोशिश करें इस तरह से इमाम को याद करें, हर इबादत में इमाम ज़माना को हम याद करते चले जाए, हमारा रिवॉर्ड भी बढ़ता चला जाएगा, हम ज़माने के इमाम से करीब होते चले जाएंगे। बड़ी आसान चीजें हैं, अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिकल बेस पर इस पर अमल करके देखना। इंशाल्लाह हम खुद देखेंगे कि हम ज़माने के इमाम से करीब होते चले गए। पता कैसे चलेगा कि हम ज़माने के इमाम से करीब हो गए? बहुत आसान है टेस्ट करना। जब इंसान इमाम ज़माना से करीब हो जाता है ना, गुनाह कम से कम होते चले जाते हैं, नेकियां बढ़ती चली जाती है, अच्छे काम बढ़ते चले जाते हैं, आखिरत की फिक्र बढ़ती चली जाती है, दुनिया की मोहब्बत कम हो जाती है, क्योंकि ज़माने के इमाम से इंसान करीब हो गया है। अब तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो हम खुद अपनी जिंदगियों में देखेंगे कि गुनाह कम हो गए हैं, दुनिया की मोहब्बतें कम हो गई है हमारे दिल से।
नेकियां बढ़ रही है। अब बस हमें इमाम की खुशी की फिक्र लगी रहती है, मेरा इमाम राजी हो जाए, मैं इमाम को खुश कर दूं, यही हमारी जिंदगी का मकसद और गोल बन जाता है। फिर आयतुल्ला सादिक रूहानी, ये हमारे शियत के बहुत बड़े आलिम है, इनसे पूछा गया कि अपने जमाने के इमाम को राजी कैसे किया जाए। हम सब चाहते ना कि हमारे जमाने के इमाम हमसे राजी हो जाए। बहुत बड़ी चीज है ये। मेरा कह देना बड़ा आसान है, आपका सुन लेना बड़ा आसान है कि इमाम जमाना को हम कैसे राजी करें, इमाम जमाना हमसे राजी हो जाए। एक चीज है कि हम कहें कि मौला आप हमारे इमाम है, मौला आप हमारे आका है, मौला हम आपके चाहने वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि इमाम पलट कर कहे कि हाँ तुम हमारे चाहने वाले हो, तुमने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी कि हम तुमसे राजी हो गए। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आयतुल्ला सादिक रूहानी से सवाल किया गया कि इमाम को कैसे राजी किया जाए। तब आयतुल्ला सादिक रूहानी कहते 4 चीजें अपनी जिंदगियों में कर लेना, जमाने के इमाम तुमसे राजी हो जाएंगे। पहली चीज, तमाम वाजिबात पर अमल करते चले जाना, जमाने के इमाम तुमसे राजी होते चले जाएंगे। दूसरी चीज, हराम काम से अपने आप को बचाते चले जाना। तीसरी चीज, गरीबों, यतीमों, जरूरतमंदों की मदद करते चले जाना, माली मदद, रूहानी मदद, जिस्मानी मदद, हर तरह की मदद इसमें शामिल है। और चौथी चीज, मुस्तहब काम ज्यादा से ज्यादा करते चले जाना। ये 4 चीजें आयतुल्ला सादिक रूहानी कहते हैं, 4 चीजें तुम्हें इमाम जमाना को राजी करने में मदद करेगी। परवरदिगार आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम हमें अपनी वाजिबात बेहतरीन अंदाज से अदा करने की तौफीक अता करे। खुदा हमें हराम काम से हर मौके पर, हर हालत में बचने की तौफीक अता करे। खुदा हमें गरीबों, मिस्किनों और जरूरतमंदों की खुसूसी तौर पर इस दौर में जब जरूरत है मदद की, लोगों को, जरूरतमंदों को, परेशान हाल को आज के दौर में बड़ी जरूरत है हमारी। खुदा हमें तौफीक अता करे कि हम गरीबों, मिस्किनों और जरूरतमंदों की मदद करें। और खुदा हमें तौफीक दे कि हम वाजिबात के साथ दूसरी मुस्तहबात को भी अंजाम दें। ये ना हो कि बस जिंदगी में 5 वक्त की नमाजें पढ़ ली, हो गया, ये वाजिब था तो हमने कर लिया। नहीं, कुरान मजीद की तिलावत ज्यादा से ज्यादा हो। अपनी डे टू डे लाइफ में जो दुआओं की इंपॉर्टेंस है, एवरीडे नमाज सुबह के बाद दुआए अहद, फ्राइडे को दुआए नुतबा, इमामों की ज़ियारत हर दिन की, शब जुमा, दुआए कुमैल, ज़ियारत वारसा, इस तरह से शब मंगल हो तो दुआए तवस्सुल, ये सारी इबादतें हैं जो हमें करना है कि जिसकी वजह से हम जमाने के इमाम को राजी करेंगे। लेकिन 4 चीज करना है, वाजिबात भी, हराम से बचना भी है, गरीबों मिस्किनों की मदद भी करना है और मुस्तहबात को भी ज्यादा से ज्यादा अंजाम देना है। तो इंशाल्लाह हम और आप जमाने के इमाम से करीब होते चले जाएंगे। हम और आप इमाम जमाना का इंतजार कर रहे हैं। यकीनन जमाने का इमाम का इंतजार हकीकी मानों में करने वालों को दुनिया में भी खुदा वो बेनिफिट्स, वो फायदे अता करेगा और आखिरत में भी इस इंतजार का खुदा हमें बेहिसाब सवाब अता करेगा। बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी की जो किताब है उसके अंदर उन्होंने एक वाकया लिखा है कि जमाने के इमाम का इंतजार करने वाले किस कदर कामयाब है। छठे इमाम अलैहिस्सलाम का दौर था। एक ज़ईफ इंसान इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है, इमाम से कहता है मौला आपका हाथ बढ़ाए, मैं आपके हाथ को बोसा देना चाहता हूँ। खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने जमाने के इमाम, अपने इस दौर के जमाने के इमाम को देखा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी। बड़े खुशकिस्मत थे वो लोग। इसने इमाम के हाथों पर बोसा दिया
और बोसा देने के बाद ज़ारो कतार रोने लगा। इमाम ने एक मरतबा उस ज़ईफ से पूछा कि क्यों रो रहे हो? ज़ईफ कहने लगा, मौला 100 साल से भी ज्यादा मेरी उम्र हो चुकी है और मैं कायम आले मोहम्मद का इंतजार कर रहा हूं। मौला मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, मौत मुझे अनकरीब नजर आ रही है, मैं मौत से करीब होता चला जा रहा हूं मौला। लेकिन मौला जिसकी मैंने आरज़ू की थी उससे मुलाकात नहीं हो सकी है। वो कहता है, मौला आपका दुश्मन खुशहाल है और मौला आप शदीद मुश्किलात में हो। ये बातें सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम ने कहा, ऐ मर्द बुजुर्ग, जो अगर इसी हालत में, यानी जमाने के इमाम को, कायम आले मोहम्मद को याद कर रहा था ना, कह रहा था वो ज़ईफ के मौला मैं उनको मिलने की आरज़ू रखता हूं। तो इमाम ने कहा कि अगर तुम इसी हालत में जिंदा रहे और कायम आले मोहम्मद का जमाना तुमने देख लिया तो तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद होगा इमाम के आने के बाद। और अगर तुम्हें मौत भी आ गई तो रोज़े क़यामत तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महशूर किए जाओगे। अल्लाह अल्लाह, ये है इमाम ज़माना का इंतजार करने वालों की फजीलत सही मानों में। लेकिन जिस तरह से इस ज़ईफ ने इंतजार किया इमाम ज़माना का, खुदा करे हमें भी हकीकी मानों में ज़माने के इमाम का इंतजार करने की तौफीक मिल जाए। सिर्फ ज़बानी न हो हमारा इंतजार कि मौला आ जाए, नहीं, हकीकी मानों में वो शिद्दत होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए ज़माने के इमाम के लिए। जुमा का दिन है, इमाम का तज़किरा हमने किया है और आज शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का रोज़ भी है। इमाम ज़माना अपनी फुफी को याद करते हैं। इमाम ज़माना अपनी फुफी का बड़ा एहतराम करते हैं। इंशाल्लाह इमाम किस कदर गिरिया करते हैं ये मैं आगे बताऊंगी अपनी फुफी के लिए। लेकिन इससे पहले शहज़ादी ज़ैनब वो बीबी है कि जिसने अपनी कुर्बानियों के जरिए से इस्लाम को बचाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर कुर्बान होने वाली बीबी का नाम है जनाब आसिया। आप जानते हैं, साहिब इल्म है। फिरऔन ने जब लोगों से सजदे करवाए और जब पता चला कि जनाब आसिया भी खुदा को सजदा करने वाली है तो जनाब आसिया को शहीद कर दिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह पर शहीद होने वाली जनाब आसिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर शहीद होने वाली जनाब सुमैया और अली वलीउल्लाह पर शहीद होने वाली हमारी और आपकी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह को बचाने वाला मेरा मौला हुसैन है। हुसैन का जिहाद, हुसैन की कुर्बानी ने इन तीनों को बचाया। लेकिन ज़ैनब वो बीबी है जिसने हुसैन के जिहाद को बचा लिया। आज दीन और इस्लाम हमारे पास है तो वो बीबी ज़ैनब का सदका है, वो बीबी ज़ैनब की मेहनतें हैं, वो बीबी ज़ैनब की कुर्बानियां हैं। हमारा लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम ज़ैनब कुबरा पर। बस ज़ादारो ये वो बीबी है शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि जिसके लिए ज़माने के इमाम खुद कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे घराने की, हमारी फुफियों की, हमारी माँ और बहनों की बाजारों में और दरबारों में जो बेपर्दगी हुई है, बेरिदाई, वो हमारे लिए सबसे बड़ा गम है। इमाम कहते हैं कि मैं खून के आंसू रोता हूं
पूछा कि मौला किस चीज के लिए खून के आंसू रोते हो? क्या अब्बास के कटे हुए शानों के लिए? कहा नहीं, अब्बास होते तो अब्बास भी खून के आंसू रोते। कहा फिर मौला किस मसाइब के लिए खून के आंसू रोते हो? कहा कि हमारी फुफियों की बेपर्दगी बाजार और दरबारों में जो हुई है उसके लिए खून के आंसू रोता हूं। बस हम दुआ करें परवरदिगार अहले बैत अतहार को, शहजादियों को पर्दे से बड़ी मोहब्बत है, खुदा हमें तौफीक अता करे कि हम भी बेहतरीन पर्देदारी कर सकें। लो आजादारों, शहजादी वो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस बीबी का नाम है कि जिसने मदीने ही से अपने भाई को वादा कर दिया था, भाई ज़ैनब तेरा हर मोड़ पर साथ देगी। जब वलीद के दरबार से हुसैन वापस आए हैं, हुसैन ने एक मर्तबा अपनी बहन से बातचीत की थी। बनी हाशिम का मोहल्ला है, हुसैन का घर है, भाई और बहन है, रात का अंधेरा है। मेरा मौला कहता है ज़ैनब हमें मदीने को छोड़ना पड़ेगा। मेरी बीबी कहती भाई मैं तेरा साथ दूंगी, ज़ैनब कुर्बानियां देनी पड़ेगी, भाई ज़ैनब तेरे साथ हर कुर्बानी में शामिल रहेगी। ऐ बहन ज़ैनब, दो मैदानों को फतह करना होगा, एक करबला का मैदान होगा, एक शाम का मैदान होगा। मेरी शहजादी कहती है भैया करबला को तुम फतह करना, शाम को मैं फतह कर दूंगी। रोजादारों, भाई और बहन ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया। ज़ैनब ने हर मोड़ पर भाई का साथ देने का वादा कर लिया। हाँ आजादारों, ये बहन अपने भाई के साथ चली है। करबला में हुसैन खैमे में लाशें उठा कर लाते थे, ज़ैनब माओ को संभालती थी, बीबियों को संभालती थी, और रुखसत हुसैन के वक्त भी ज़ैनब ने वादा कर दिया भैया ज़ैनब ऐसा सब्र करेगी कि सब्र भी ज़ैनब से आजिज आ जाएगा। लो आजादारों, मेरी शहजादी ने अपने भाई से किया हुआ वादा इस तरह से निभाया कि अपने औनो मोहम्मद पर बीबी ने कभी गिरिया नहीं किया। मेरी शहजादी ने कभी अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया। अपने दिल को इस कदर मेरी बीबी ने स्ट्रॉन्ग बना लिया कि कभी लैला को संभालती, कभी फरवा को संभालती, कभी कुलसूम के आंसू को पोंछती, कभी सज्जाद का सहारा बनती। इस तरह से मेरी बीबी सफर करती हुई शाम के दरबार में पहुंची है। यजीद को ललकारा है, शाम का यजीद का तख्ता उलट दिया मेरी बीबी ने। हाँ आजादारों, शाम में मेरी बीबी ने यजीद को चैलेंज किया था, यजीद आज तख्त पर तू बैठा है, तेरी हुकूमत है, लेकिन याद रखना तू जितनी कोशिशें कर सकता है कर लेना, लेकिन वो वक्त आएगा जब तेरा नाम मिट जाएगा, हमारा नाम बाकी रहेगा। ये शहजादी का इल्म गैब था। हाँ ज़ादारो, जब ज़ैनब ने भरे दरबार में यजीद को ललकारा है, एक मर्तबा यजीद हक्का बक्का रह गया। हाँ ज़ादारो, अहले हरम को कैद खाने में कैद कर दिया गया। शाम का जिंदान गुजरा, बीबी ने हर बीबी को संभाला, यहाँ तक कि रिहाई भी मिली, सकीना से जुदाई हो गई। मेरी शहजादी ने दुश्मन के शहर में हुसैन इब्ने अली की फर्श अज़ा बिछाई। लोगों को ये पैगाम दिया मेरी बीबी ने कि हुसैन का नाम जिंदा है और जिंदा रहेगा। हाँ ज़ादारों, यहाँ तक कि मेरी बीबी अपने वतन वापस भी आई, लेकिन वो वक्त भी आया जब मेरी बीबी फिर से सफर शाम के लिए चली है। मेरे चौथे इमाम को जब शाम की तरफ वापस बुलाया गया है, मेरी बीवी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा साथ चली है। जनाब फिज़ा भी है, जनाब सुगरा भी है। रास्ते में वो वक्त आया कि जहां पर एक
बाग में मेरी बीबी की शहादत हो गई। शाम से पहले पहले की मंजिल थी जहां मेरी बीबी की शहादत हुई। वो दुश्मन अहले बैत पर खुदा लानत करे जिसने मेरी बीबी के सर पर वार किया था। एक कुछ रिवायतों में मिलता है कि शहजादी के सर पर वार हुआ, शहजादी की वहीं पर शहादत हो गई, गुस्लो कफन दिया गया। वहीं पर चौथे इमाम ने अपनी फूफी को दफन किया। आज़ादारों, उस वक्त वो इलाका शाम से बाहर था, लेकिन जब शाम बड़ा होता चला गया, शहर बढ़ता चला गया, तो बीबी ज़ैनब की कब्र भी शाम के अंदर आ चुकी है। हम देखते हैं एक तरफ बीबी ज़ैनब का रोजा है, एक तरफ बीबी सकीना का रोजा है, आंखों में आंसू है। जो जाके आए हैं शाम, उनकी नजरों में शहजादियों के रोजे घूमने लगे हैं। दुआ करे परवरदिगार जल्द से जल्द हालात बेहतर बना दे, हम सबको शाम की ज़ियारत जल्द से जल्द नसीब करना। तमाम आइमाओं की ज़ियारत की हमें तौफीक अता कर। लो आज़ादारों, मेरी बीबी की कब्र वहीं बन गई। सकीना से शायद मेरी बीबी ने वादा किया था, सकीना आज तुझे अकेला छोड़कर जा रही, कल लौट कर तेरी फूफी तेरे पास जरूर आएंगी। और ज़ैनब ने अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ ज़ादारो, ज़ैनब ने यजीद से कहा था ना, यजीद तेरा नाम मिट जाएगा, हमारा नाम जिंदा रहेगा। आज 1400 साल के बाद हम देखते हैं शाम में जहां यजीद की हुकूमत थी, यजीद का नाम था, वही शाम आज ज़ैनब का बन चुका है। जब अज़ादार, जब ज़ाहिर ज़ैनब शाम में कदम रखते हैं, लिखा हुआ है वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंखों में आंसू है। अपने अपने हाथों को बुलंद करके हम परवरदिगार आलम से दुआ करें, खुदाया इन तमाम मजालिम के इंतकाम के लिए तेरी आखिरी हुज्जत बकियतुल्लाह आज़म इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार ऐसी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता कर जिसे ज़माने के इमाम हमसे राजी हो जाए। परवरदिगार खुदावंद आलम तमाम मरहूमीन, खुसूसन जिन मरहूमों के साले सवाब की मजलिस है, परवरदिगार मरहूम कासिम अली अजीम और मरहूम हाजी मोहम्मद अली यूसुफ अली मौलवी को परवरदिगार इनके दरजात को बुलंद कर, इनके गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ कर देना, आलम बरज़ख के ज़माने को आसान कर देना। परवरदिगार जुमा का दिन है, हमारे मरहूमीन इंतज़ार कर रहे परवरदिगार, खुसूसन इन मरहूमों को परवरदिगार आलम बरज़ख में बेहतरीन जगह अता करना। परवरदिगार हालात बेहतर से बेहतर जल्द बना दे, जल्द से जल्द अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के रोज़ों के लिए रास्तों को खोल दे। हमें अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, मोहम्मद वाले मोहम्मद के कब्रों की ज़ियारत जल्द से जल्द करना नसीब हो। परवरदिगार दुनिया में जो वबा फैली, जो बीमारी फैली है, उसे जल्द से जल्द निस्तो नाबूद कर दे। परवरदिगार दुनिया में जहां जहां अहले बैत के चाहने वाले, उन सब की जान, माल, इज्जत, ईमान, आबरू और औलाद की हिफाजत कर। परवरदिगार हमारे वालिदैन को हर एक तकलीफ से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से तेरी हिफ्ज़ व अमान में रखना। वालिदैन की बेहतरीन और फरमाबरदार औलाद बनने की तौफीक अता कर। हमारी औलाद को नेक, सालेह, तंदुरुस्त, फरमाबरदार, बेऐब, खूबसूरत ऐसी बना कि हमारी औलाद दुनिया और आखिरत में हमारे लिए इज्जत का सबब बने और ज़माने के इमाम के लश्कर में काम आ सके। परवरदिगार खुदावंद आलम, खुदाया जिसने जिसने दुआ में याद रखने के लिए कहा है, खुसूसन जितने लोग मजलिस को सुन रहे हैं, जो बानियान है, जिन मरहूमों की साले सवाब की मजलिस है, उनके रिश्तेदार और तमाम मोमिन व मोमिनात, परवरदिगार जो जो हमें दुआ में याद रखने के लिए कहते, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जिनका हम पर हक है, परवरदिगार उन सब की तमाम की नेक दिली मुरादों को पूरी कर दे। परवरदिगार माह मुहर्रम करीब है, अज़ादारों के दिल में एक हलचल मची हुई है, हर अज़ादार का दिल कह रहा है परवरदिगार तो उस
बेकरार दिलों की तू सदा को सुन ले खुदा। तू अला कुल्ले शहीन कदीर है, एक पल में चाहे तो हालात बेहतर बन सकते हैं खुदा। जल्द से जल्द हालात को बेहतर बना दे ताकि हम आने वाले मुहर्रम को पिछले हर मुहर्रम से बेहतर बना सके। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बेहतरीन पुरसा दे सके। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेहतरीन अंदाज से आज़ादारी कर सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जुमा का दिन है, हम अपने अपने मरहूमीन के लिए, हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बानियान मजलिस के मरहूमीन के लिए मिलकर एक सूरह फातिहा पढ़ेंगे। हमारे मरहूमीन इंतजार कर रहे हैं हमारे तोहफे का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। परवरदिगार, इस सूरह फातिहा का मजलिस हुसैन हदीस किस्सा का हदिया अहले बैत अलैहिस्सलाम, चार दामाद इस्लाम, तमाम शुहदाए करबला, तमाम असीरान करबला, खुसूसन शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हदिया पेश करते हैं। उनके तुफैल से इन तमाम चीज़ों का सवाब मरहूम कासिम अली अजीम और मरहूम हाजी मोहम्मद अली यूसुफ अली मौलवी को और बानियान के तमाम मरहूमीन, हाज़रीन मजलिस के तमाम मरहूमीन और कुल मरहूम मोमिन वल मोमिनात को इस सूरह फातिहा का मजलिस हुसैन का हदीस किस्सा का हदिया पहुंचे। परवरदिगार, हमारी तमाम की जानिब से इस हदिया को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।